السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ دین سے مراد ایسا نظام حیات ہے جسے کے لیے انسانوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بہتر سمجھتے ہوئے اللہ پاک نے عطا کیا ہے۔ اسلام بہترین ضابطہ حیات ہے، اور اسلام میں یہ بھی شامل ہے کہ محبت، امید، خوف، اپنائیت، دعا خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ اس مقصد کے لیے رسول اللہ کی پیروی کرنی ضروری ہے۔ یہی تمام رسولوں کا دین ہے۔ جو اس دین کی پیروی کرے گا وہی صحیح راستے پر ہوگا، اور جو اس کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر وہ لوگ اگر آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دو کہ میں نے اور جنہوں نے میری پیروی کی اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا۔ اور آپ ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے اور ان پڑھوں سے کہہ دو کیا تم تابع ہو گئے؟ پھر اگر وہ تابع ہو جائیں تو یقیناً ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ موڑیں تو آپ کے ذمے صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اہل کتاب سے مراد یہاں یہودی اور عیسائی ہیں، اور امیوں سے مراد مشرکین عرب ہیں جو کہ ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے لوگ قلیل تھے۔ رکوع نمبر 11 ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور لوگوں میں سے انہیں قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی آیات کو قابل اعتنا نہ سمجھنا، اس کا علم حاصل نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، نہ اپنی کتاب پر عمل کرنا، نہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والی کتابوں انجیل اور قرآن پر عمل کرنا، اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ان میں سے انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح فرماتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، قیامت کے دن کس شخص کی سزا سب سے زیادہ سخت ہوگی؟ آپ نے فرمایا، اس کی جس نے کسی نبی کو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے شخص کو قتل کیا ہوگا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا، عبیدہ، بنی اسرائیل نے نئے دن کے اول حصے میں اچانک حملہ کر کے 43 انبیاء کو بیک وقت قتل کر دیا تھا۔ پھر بنی اسرائیل میں سے 112 عابد و زاہد میدان میں آ گئے۔ انہوں نے ان قاتلین کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تبلیغ شروع کر دی۔ شام ہوتے ہوتے یہ تمام لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ یہ سب کچھ ایک دن میں ہو گیا۔ تو بات بڑی قدیم ہے، یہ کوئی ماڈرنٹی نہیں ہے، قدیم جاہلیت ہے۔ دین کی تبلیغ کرنے والوں سے جھگڑا کرنا، انہیں قتل کر ڈالنا، ان کے امیج کو توڑنا، ان کے خلاف محاذ آرائی کرنا، ایسی تدابیر سوچنا جس کی وجہ سے دین دنیا سے اٹھ جائے، یہ کارنامے یہودی اور عیسائی پہلے بھی انجام دیتے رہے، آج بھی
वही सूरत हाल जारी है। अल्लाह ताला हम सबको सच्ची समझ नसीब फरमाए और अल्लाह ताला सब इंसानों को अपने रब की बात सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यही वो लोग हैं जिनके आमाल दुनिया और आखिरत में जाया हो गए और उनके लिए कोई मददगार नहीं। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया था? उन्हें अल्लाह ताला की किताब की तरफ बुलाया जाता है ताकि वो उनके दरमियान फैसला करे। फिर उनमें से एक गिरोह मुंह मोड़ लेता है, इस हाल में कि वो मुंह मोड़ने वाले होते हैं। सैयदना इब्न अब्बास ने कहा, अल्लाह ताला ने कुरान को उन मामलात में हकम बनाया जो उनके और रसूलुल्लाह के दरमियान थे। कुरान का उनके बारे में फैसला यह है कि वो हिदायत पर नहीं, इसलिए उनसे मुंह फेर लें। ये तफसीर खाजिन की रिवायत है। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदात। ये इस वजह से कि उन्होंने कहा था गिनती के चंद दिनों के सिवा दोज़ख की आग हमें हरगिज न छुएगी, और इस चीज ने उनके दीन के बारे में उन्हें धोखे में डाल दिया जो वो घड़ा करते थे। यहूदी अकीदा रखते थे हम अल्लाह ताला के चहीते हैं, इसलिए हमें दोज़ख की आग नहीं छुएगी, और अगर हम दोज़ख में गए तो सिर्फ 7 दिन तक जाएंगे। उनके नजरिए के मुताबिक दुनिया की उम्र 70,000 साल है। हर 1000 के बदले में हम एक दिन जहन्नुम में जाएंगे। मुसलमानों ने भी ऐसे खुद साख्ता अकीदे बना रखे हैं। मिसाल के तौर पर दीन अलग चीज है, उसका दुनिया से क्या ताल्लुक है, खानदानी जिंदगी में दीन की क्या जरूरत है, लोगों की सोशल लाइफ का दीन के साथ क्या ताल्लुक है। दीन पर अमल नहीं किया जा सकता। दीन पर अमल करना आज के दौर में बड़ा मुश्किल है। अल्लाह की बातें सच्ची हैं, एप्लीकेबल हैं। दीन पर अमल किया तो दुनिया नहीं छूटेगी। दीन सिर्फ रिश्तेदारों की हुकूक अदा करने को नहीं कहता, दीन पूरी जिंदगी के निजाम को बदलता है। अल्लाह ताला हमें शुबहात से और दीन के मुकाबले में उसकी मुखालफत करने वालों के शुबहात से बचा ले। तो क्या हाल होगा जब हम उन्हें उस दिन के लिए इकट्ठा करेंगे जिसमें कोई शक नहीं, और हर जान को उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा जो उसने कमाया, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। उस दिन से मुराद कयामत का दिन है। फिर फरमाया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर। आप कह दें, ऐ अल्लाह, बादशाही के मालिक, तू जिसको चाहता है बादशाही देता है, और जिससे चाहता है बादशाही छीन लेता है, और तू जिसको चाहता है इज्जत देता है और जिसको चाहता है जलील कर देता है। तेरे हाथ में ही सब भलाई है, तू हर चीज पर यकीनन पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। अल्लाह ताला बादशाह है जो तमाम बादशाहतों का मालिक है। इसमें इशारा ईरान के और रोम के कैसर बादशाहों से, पैरोकारों से हुकूमत छीन कर अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैरोकारों को अता करेगा। फिर फरमाया, तू हर चीज पर यकीनन पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। तू ही रात को दिन में दाखिल करता है और तू ही दिन को रात में दाखिल करता है, और तू ही जिंदा को मुर्दा से निकालता है और तू ही मुर्दा को जिंदा से निकालता है, और तू जिसे चाहता है बेहिसाब रिज्क देता है। अल्लाह ताला के हुक्म से दिन रात बदलते हैं, मौसमी तब्दीलियां आती हैं, रात दिन का आना जाना, मौसमों का तगय्युर और तबद्दुल सब अल्लाह ताला की मशीयत से है। फिर फरमाया, ईमान वाले मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त न बनाएं, और जो ऐसा करेगा तो वो अल्लाह ताला की तरफ से
किसी चीज में नहीं मगर ये कि तुम उनसे बचो, किसी तरह से बचना। और अल्लाह ताला तुम्हें अपनी जात से डराता है और अल्लाह ताला ही की तरफ लौट कर जाना है। फिर फरमाया, आप कह दो जो तुम्हारे सीनों में है तुम उसे छुपाओ या उसे जाहिर करो, अल्लाह ताला उसको जानता है। और जो आसमानों में है और जो जमीन में है अल्लाह ताला उसको भी जानता है। और अल्लाह ताला हर चीज पर पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। अल्लाह ताला ने इस आयत में इशारा किया है कि दिलों को पाक करना चाहिए और अल्लाह ताला के इल्म को हर वक्त अपने जहन में जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि इसी इल्म से अल्लाह ताला का कुर्ब मिलता है। कुरान मजीद की किसी आयत या रसूलुल्लाह की किसी हदीस पर गौर फिक्र करने से इंसान को खुद भी नफा होता है, मखलूक भी नफा उठाती है। बंदों की भलाई के बारे में सोचना हर किसी को नसीब नहीं होता। अल्लाह ताला जिसे चाहता है हिदायत देता है। जिस दिन हर नफ्स उसको मौजूद पाएगा जो उसने नेकी की और जो उसने बुराई की, उस दिन आदमी तमन्ना करेगा काश उसके और उसकी बुराइयों के दरमियान में बहुत दूर का फासला होता। और अल्लाह ताला तुम्हें अपनी जात से डरा रहा है और अल्लाह ताला बंदों पर बेहद नरमी करने वाला है। रुकू नंबर 12 है, फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। आप कह दें अगर आप अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। और अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला बेहद रहम वाला है। अल्लाह ताला की मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के बगैर नहीं मिल सकती। जो सुन्नत पर अमल करेगा उसे अल्लाह की मोहब्बत भी मिलेगी और मग़फ़िरत भी। अल्लाह ताला हमें अपने रसूल की पैरवी की तौफीक अता फरमाए। कुल अतीउल्लाह वर रसूल, आप कह दे अल्लाह ताला की और उसके रसूल की इताअत करो। फिर अगर वो मुंह मोड़ जाएं तो अल्लाह ताला काफिरों को यकीनन पसंद नहीं करता। इस आयत में मुनकरीन हदीस और इत्तिबाए रसूल से गुरेज करने वालों के लिए वईद है। दोनों के रवैये को अल्लाह ताला ने कुफ्र करार दिया है। सैयदना उर्वा बिन जुबैर से रिवायत है, सैयदना अबू बकर ने फरमाया, मैं कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ सकता जिस पर रसूलुल्लाह अमल किया करते थे, क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैं रसूलुल्लाह के कौलो फेल में से कोई चीज भी छोड़ूंगा तो गुमराह हो जाऊंगा। आज इस उम्मत की सूरत हाल देखिए, कौन सी चीज है जो जिंदगी में रह गई, किस जगह किस मैदान में अल्लाह के रसूल की बात को मानना चाहते हैं और कहां पर अपनी मर्जी को तर्क करना चाहते हैं। जरूर देखते रहिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है हमें ऐसा ईमान नसीब फरमाए जैसा ईमान सैयदना अबू बकर को मिला, असहाबे रसूल को मिला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे हमें पता चला कि तरीक़े मोहम्मदी की मुखालफत कुफ्र है। सईदा आयशा सिद्दीका ने खबर दी कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने ऐसा अमल किया जिस पर हमारा हुक्म नहीं है तो वो मरदूद है। सही मुस्लिम की 4493 नंबर रिवायत। और आगे तस्करा है चंद खानदानों का जिनके बारे में अल्लाह ताला ने खबर दी है, इन्नल्लाह अस्तफा आदमा व नूहा व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। यकीनन अल्लाह ताला ने तमाम जहानों में से आदम को और नूह को और इब्राहिम के खानदान को और इमरान के खानदान को मुंतखब फरमाया है। अल्लाह ताला ने यह साबित किया कि तमाम अंबिया बरगजीदा थे, उनके खास खानदान थे
जिनका तज़किरा हमें यहाँ मिल रहा है, वो एक दूसरे की औलाद हैं और अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। वो एक दूसरे की औलाद है, इससे मुराद है अंबिया तख्लीक के लिहाज से भी एक दूसरे से मुशाबे थे और अखलाक हसना के एतबार से भी। आगे तज़किरा है जहान में ऐसे खानदान का जिन्होंने अपने रब से मोहब्बत की, जिन्होंने रब की मोहब्बत में ये तय किया था, एक ऐसी औरत जिसने तय किया अपने पेट का बच्चा अपने रब की नजर कर दूंगी। हाँ, उसने बच्चे को अपने रब की अमानत समझा था। जब इमरान की बीवी ने कहा, ऐ मेरे रब, जो मेरे पेट में है मैंने नजर मानी है कि तेरे लिए आजाद छोड़ा हुआ होगा। आप तो अपने बच्चे पर अपना हक समझते हैं, अल्लाह ताला का हक कब समझते हैं? आप अपने बच्चे को उस रास्ते पे चलाना चाहते हैं जो आपको पसंद है। रब की पसंद के मुताबिक बच्चे को कब चलाना चाहते हैं? बस आप मुझसे कबूल फरमाएं, यकीनन आप सब कुछ सुनने वाले, सब कुछ जानने वाले हैं। ये सईदा मरियम की वालिदा सईदा हन्ना है। ये दुआ उन्होंने तब मांगी थी जब सईदा मरियम उनके पेट में थी कि तू मेरी दुआ सुन रहा है, मेरे इरादों से वाकिफ है, मुझसे कबूल फरमा ले। फिर जब उसने बच्चे को जन्म दिया तो कहा, ऐ मेरे रब, मैंने तो लड़की को जन्म दे दिया। हालांकि अल्लाह ताला खूब जानता था जो उसने जन्म दिया, और लड़का तो लड़की जैसा नहीं होता, और बिलाशुबा मैंने उसका नाम मरियम रखा है, और यकीनन मैं उसको और उसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। सईदा मरियम की वालिदा ने माजरत की थी, लड़का होता तेरे घर की अच्छी तरह खिदमत करता। कहती है लड़का तो लड़की जैसा नहीं होता। कैसी बात है जो उन्होंने की थी कि सोशली लड़की पर जो जिम्मेदारियां आयद होती हैं और लड़की के वालिदैन जैसे उसकी हिफाजत करते हैं, लड़के के बारे में ये मामला नहीं होता। सो उसके रब ने उसे अच्छी कबूलियत के साथ कबूल फरमाया और उसकी बेहतरीन परवरिश की और जकरिया को उसका सरपरस्त बनाया। जकरिया जब कभी उसके पास इबादत खाने में आते, उसके पास रिस्क पाते तो पूछते, या मरियम अन्ना लकी हाजा, ए मरियम ये तेरे पास कहां से आया? वो कहती हुआ मिन इंदिल्लाह, ये तो अल्लाह ताला के पास से है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, यकीनन अल्लाह ताला जिसको चाहता है बेहिसाब रिस्क अता फरमाता है। रमज़ान 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 रमज़ान। इसी बात का तो आज की दुनिया में लोगों को यकीन नहीं आता कि रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में है। इसी वजह से तो हलाल रास्ते छोड़ के हराम रास्ते इख्तियार किए जाते हैं। जैसे कौसर न्याजी ने कहा था, तूने हक को छोड़ा है एहसास गुर्बत से फकत, सोचता हूं तो दिल एहसास से दहल जाता है। क्या इस बात से भी न थी तुझको आगही, रिस्क तो इस दौर में कुत्तों को भी मिल जाता है। रिस्क ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए इंसान अपनी पूरी उम्र उसके नाम कर दे। रिस्क जिंदगी की जरूरत है, जिंदगी नहीं है। जिंदगी रिस्क के लिए नहीं लगानी, जिंदगी के लिए रिस्क कमाना है, जिंदगी रब के लिए लगानी है। जिंदगी तो अल्लाह ताला ने अपने लिए दी है। हम सब अल्लाह ताला के लिए पैदा किए गए। हमारी जिंदगी का मकसद इबादत है ताकि हमारे दिल मोहब्बत और ताजीम के साथ उससे जुड़ जाएं। इलाही तो हमारे दिलों को अपने साथ जोड़ ले। हुनालिका दा ज़करिया रब्बहू, वहीं ज़करिया ने अपने रब को पुकारा। उसने कहा, ऐ मेरे रब,
مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بلا شبہ تو ہی دعا کا خوب سننے والا ہے۔ سیدہ مریم جیسی صالح لڑکی کے پاس رزق کی فراہمی دیکھ کر ان کے دل میں بھی امید پیدا ہوئی، بے موسم کا پھل مانگ لیا، یعنی بیوی بانجھ تھی، خود بھی بڑھاپے کی آخری عمر میں تھے، چنانچہ فرشتوں نے اس کو آواز دی جبکہ وہ عبادت خانے میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ایک کلمے عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا اور سردار اور اپنے اوپر بہت ضبط رکھنے والا ہوگا اور نیک لوگوں میں سے نبی ہوگا۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، حالانکہ یقیناً مجھ تک بڑھاپا پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کسی کی مرضی نہیں، اس کی مرضی ہے، وہ اپنی مرضی پوری کر سکتا ہے اور کوئی اور اپنی مرضی پوری نہیں کر سکتا۔ قال رب اجعل لی آیہ، زکریا نے کہا، اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کے لیے نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک لوگوں سے کچھ اشاروں کے سوا باتیں نہ کر سکو گے اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ زبان بندی کی نشانی سے اللہ تعالیٰ نے یقین دلایا، اسباب موجود بھی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو کام کرنے سے روک سکتا ہے۔ کیا آج آپ نہیں دیکھ رہے کتنے لوگ ہیں جن کے اندر کورونا وائرس پازیٹیو نکلتا ہے اور انہیں کچھ نہیں ہوتا؟ بھائی ایکٹیویٹ کرنے والا کرے گا تو اس نے کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے اندر چاہتا ہے ایکٹیویٹ کر دیتا۔ یہ ایکٹیویشن کسی کے کرنے سے نہیں ہوگی، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے تحت ہے۔ رکوع نمبر 13 ہے، اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو برگزیدہ بنایا ہے اور آپ کو پاک کیا ہے اور سب جہانوں کی عورتوں پر آپ کو منتخب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو شروع سے آپ کو بزرگی دے رکھی ہے۔ آپ کی والدہ کی دعا سن کر آپ کو خلت وجود بخشا گیا۔ ہیکل کی خدمت کا کام لڑکوں اور مردوں کے لیے مخصوص تھا، آپ کو لڑکی ہونے کے باوجود اس کا موقع عنایت کیا گیا۔ اے مریم، اپنے رب کی اطاعت کرو، سجدے کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی بیت المقدس میں باجماعت نماز کے لیے حاضری دو۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ورنہ آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے گا، اور نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور وہ دنیا اور آخرت میں بہت مرتبے والا اور مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور وہ گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی لوگوں سے باتیں کرے گا، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ کسی بشر نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً وہ اس سے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔ حکمت نافع علم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کی سمجھ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور وہ بنی اسرائیل کی جانب رسول ہوگا۔ بلا شبہ میں یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں کہ میں یقیناً تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت جیسی چیز بناتا ہوں۔ یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے۔ پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے
परिंदा बन जाता है। और अल्लाह ताला के हुक्म से मैं पैदाइशी अंधे और कोढ़ी को ठीक करता हूँ और मुर्दों को भी जिंदा करता हूँ। और मैं तुम्हें खबर देता हूँ कि तुम क्या खाते हो और क्या अपने घरों में जखीरा करते हो। बिलाशुबा इसमें यकीनन तुम्हारे लिए निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैगंबरों में शामिल कर लिया और उन्हें बनी इसराइल की तरफ भेजा जो अपने जमाने की अफजल कौम थी। और अल्लाह ताला ने मोजज़ात अता किए। मोजज़े में कोई रब की कुदरत को पा सकता है, लेकिन जिसके दिल में कजी हो मुझे उसे कुछ भी नहीं देते। और तस्दीक करने वाला हूं उसके लिए जो मुझसे पहले तौरात में से है, और ताकि मैं बाज वो चीजें तुम्हारे लिए हलाल कर दूं जो तुम पर हराम की गई थी। और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लेकर आया हूं। चुनांचे अल्लाह ताला से डर जाओ और मेरी इताअत करो। बिलाशुबा अल्लाह ताला मेरा भी रब है और तुम्हारा भी, चुनांचे उसी की इबादत करो। यही सीधा रास्ता है, यानी तौहीद का, अल्लाह ताला की इबादत का, रसूलुल्लाह की फर्मा बरदारी का। यही रास्ता जन्नत तक पहुंचाता है। फिर जब ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कुफ्र महसूस किया तो कहा, कौन अल्लाह ताला की तरफ मेरा मददगार है? हवारियों ने कहा, नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह ताला के मददगार हैं, हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए हैं और आप गवाह हो जाएं कि यकीनन हम फर्मा बरदार हैं। ए हमारे रब, जो आपने नाजिल किया हम उस पर ईमान लाए हैं और हमने रसूल की पैरवी की है, चुनांचे हमें भी गवाही देने वालों के साथ लिख लीजिए, उन लोगों के साथ जो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देते हैं। वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और उन्होंने खुफिया तदबीर की और अल्लाह ताला ने भी खुफिया तदबीर की, और अल्लाह ताला सब खुफिया तदबीर करने वालों में से बेहतर है। दुनिया के लोग समझते हैं इख्तियार, कंट्रोल हमारे हाथ में है। जब इंसान तदबीर करते हैं तो अल्लाह ताला की तकदीर हरकत में आ जाती है, उससे बढ़कर कोई तदबीर करने वाला नहीं। रुकू नंबर 14 है, जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए ईसा, यकीनन मैं तुझे कब्ज करने वाला हूँ और तुझे अपनी जानिब उठाने वाला हूँ, और उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया तुझे पाक करने वाला हूँ, और जिन लोगों ने तेरी पैरवी की उन्हें कयामत के दिन तक उन लोगों पर गालिब करने वाला हूँ जिन्होंने कुफ्र किया। फिर मेरी तरफ तुम सबकी वापसी है, सो मैं तुम्हारे दरमियान उन बातों में फैसला करूंगा जिनमें तुम इख्तिलाफ किया करते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा के बारे में ये वाज़े किया है कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठाने वाला हूँ। कुर्ब क़यामत के ज़माने में ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, हम सब मुंतज़िर हैं। 100 से ज़ायद अहादीस नुज़ूल मसीह के बारे में मरवी हैं, और जिन लोगों ने तेरी पैरवी की, ईसा अलैहिस्सलाम की असल पैरवी तो मुसलमान ही करते हैं क्योंकि वो उनको हक समझते हैं। आज रसूलुल्लाह की पैरवी करना दरअसल तमाम अंबिया की पैरवी करना है। फिर जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्हें मैं दुनिया और आखिरत में सख्त अजाब दूंगा और उनके लिए कोई मददगार ना होगा। दुनिया के अजाब से मुराद कत्ल, कैद, जिल्लत और मस्कनत है। आखिरत के अजाब से मुराद आग का अजाब है। लेकिन जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए तो उन्हें वो पूरे के पूरे उनके अजर देगा, और अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। जुल्म कायनात की फितरत के खिलाफ है। अल्लाह ताला आदिल है, इसलिए जालिमों को पसंद नहीं करता। यह है जो हम पुरहिकमत आयात और नसीहत में से तुम पर पढ़ते हैं, यानी कुरान हकीम। बिलाशुबा ईसा की मिसाल अल्लाह ताला के नजदीक आदम की मिसाल जैसी है। अल्लाह ताला ने आदम को मट्टी से बनाया, फिर उससे कहा कि हो जा, तो वो हो गया। आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले बशर हैं, उनको सभी बशर तस्लीम करते हैं। अगर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के पैदा हुए तो आदम अलैहिस्सलाम तो माँ और बाप के बगैर पैदा हुए। उनकी उलूहियत का दावा नहीं किया जाता तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की उलूहियत का दावा कैसे किया जा सकता है?
अलहक्कु मिर रब्बिका फला तकुम मिनल मुमतरीन, यही हक तेरे रब की जनाब से, चुनांचे आप शक करने वालों में से न हो जाना कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की तरह, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह ताला के बंदे हैं। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के रसूल और उसका कलिमा और उसकी रूह है। फिर जो आपसे इसमें झगड़ा करे, इसके बाद जो इल्म में से आपके पास आ गया, तो आप कह दो तुम आओ हम अपने बेटों को और तुम्हारे बेटों को बुलाएं, और अपनी औरतों और तुम्हारी औरतों को, और अपने आप को और तुम्हें भी बुलाएं, हम गिड़गिड़ा कर दुआ करें, बस हम झूठों पर अल्लाह ताला की लानत भेजें। इस आयत में मुबाहला का तरीका इख्तियार करने का हुक्म है। बिलाशुबा ये यकीनन सच्चा बयान है और अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, और बिलाशुबा अल्लाह ताला यकीनन वही सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। अल्लाह का गलबा अपने ऊपर तस्लीम कर लें। इस पूरी जमीन पर किसी और का गलबा नहीं है, उसी जात का गलबा है। अगर वो फिर भी मुंह मोड़ेंगे तो अल्लाह ताला फसाद करने वालों को यकीनन खूब जानने वाला है। रुकू नंबर 15 है, आप कह दें ए अहले किताब, उस कलमे की तरफ आओ जो हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान बराबर है कि हम अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत न करें और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं, और हम अल्लाह ताला के सिवा किसी दूसरे को, किसी एक को भी रब न बनाएं। फिर अगर वो मुंह मोड़ें तो आप कह दें कि तुम गवाह हो जाओ, बिलाशुबा हम मुसलमान हैं। अहले किताब, तुम इब्राहिम के बारे में क्यों झगड़ते हो, हालांकि तौरात और इंजील उसके बाद ही नाजिल की गई, तो क्या तुम समझते नहीं हो? सैयदना इब्न अब्बास से रिवायत है, उन्होंने कहा कि नजरान के ईसाइयों, यहूदियों के अहबार रसूलुल्लाह के पास जमा हुए, आपसे मुबाहसा शुरू किया। अहबार ने कहा इब्राहिम यहूदी थे, ईसाइयों ने कहा वो ईसाई थे। उस पर यह आयत नाजिल हुई, हाँ तुम वो लोग हो, तुमने इस बात में झगड़ा किया जिसका तुम्हें इल्म था, फिर उसके बारे में क्यों झगड़ा करते हो जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं? और अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन क्या था। इब्राहिम न यहूदी थे न ईसाई, बल्कि वो यकसू मुसलमान थे और मुशरिकों में से नहीं थे। यकीनन लोगों में इब्राहिम के सबसे ज्यादा करीब वो हैं जिन्होंने उनकी पैरवी की, और ये नबी और वो लोग जो ईमान लाए, और अल्लाह ताला मोमिनों का दोस्त है। अहले किताब में से एक गिरोह ख्वाहिश रखता है कि काश वो तुम्हें गुमराह कर दें, हालांकि वो नहीं गुमराह कर रहे मगर अपनी जानों को, और वो शऊर नहीं रखते। अहले किताब, तुम अल्लाह ताला की आयात का कुफ्र क्यों करते हो, हालांकि तुम गवाही देते हो? अहले किताब, तुम हक को बातिल से गड़मड़ क्यों करते हो, और क्यों तुम हक को छुपाते हो, हालांकि तुम जानते भी हो हक को बातिल से मिलाने से मुराद है यहूदियत और ईसाइयत को इस्लाम से मिलाना। रुकू नंबर 16 है, और अहले किताब में से एक गिरोह ने कहा कि दिन के आगाज में तुम इस पर ईमान लाओ जो नाजिल किया गया, उन पर जो ईमान लाए, और तुम उसकी शाम को कुफ्र कर दो ताकि वो वापस लौट आए। यहूदियों और ईसाइयों को एक अजीब फिक्र लाक है मुसलमानों को गुमराह करने के लिए। पूरे आलम इस्लाम के असातिज़ा, प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स, फिलोसोफर्स उन्होंने हायर कर रखे हैं मुसलमानों को गुमराह करने के लिए। लिखारी, शोरा, फनकार, सहाफी अपने जाल में फंसाए हुए हैं। मुसलमानों के दिलो दिमाग में शुकूक व शुबहात फैलाए जा रहे हैं, इस्लामिक लाइफस्टाइल का मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐसे में अल्लाह ताला ने अपनी किताब को महफूज रख के सबको चांस दिया हुआ है कि उस किताब से अपने शुकूक को दूर कर लें, और तुम किसी का यकीन ना करो सिवाय उसके जो तुम्हारे दीन की इत्तिबा करे। आप कह दो इन्नल हुदा हुदल्लाह, यकीनन हिदायत तो अल्लाह ताला ही की हिदायत है। ये ना मानना कि किसी एक को उस जैसा दिया जाए जो तुम्हें दिया गया था, या वो तुमसे तुम्हारे रब के पास झगड़ा करेंगे। आप कह दें यकीनन अल्लाह ताला ही के हाथ में फजल है, जिसको वो चाहता है अता करता है, और अल्लाह ताला बड़ी वुसअत वाला, सब कुछ जानने वाला है। वो जिसको चाहता है
अपनी रहमत से खास कर लेता है और अल्लाह ताला बहुत बड़े फजल वाला है। और अहले किताब में से ऐसे भी हैं कि आप अगर उसको एक खजाने का अमीन बना दो तो भी वो उसको अदा कर देगा, और उनमें से ऐसे भी हैं कि आप अगर उसको 1 दीनार भी अमानत दो वो भी आपको उस वक्त तक अदा नहीं करेगा मगर जब तक आप उनके सर पर खड़े रहो। उसकी वजह यह है कि यकीनन उन्होंने कहा कि अनपढ़ों के बारे में हम पर कोई रास्ता नहीं, और वो अल्लाह ताला पर झूठ कहते हैं हालांकि वो जानते हैं। क्यों नहीं, जो भी अपना अहद पूरा करे और अल्लाह ताला से डरे तो बिलाशुबा अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों से मोहब्बत करता है। यकीनन जो लोग अल्लाह ताला के अहद और अपनी कसमों के बदले थोड़ी कीमत लेते हैं, यही वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा ना होगा और अल्लाह ताला ना उनसे बात करेगा और ना ही कयामत के दिन उनकी तरफ देखेगा और ना ही उनको पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। और बिलाशुबा उनमें यकीनन एक गिरोह वो है जो किताब पढ़ते हुए अपनी जुबानों को मरोड़ते हैं ताकि तुम उसे भी किताब ही समझो, हालांकि वो किताब में से नहीं है। और वो कहते हैं कि अल्लाह ताला की जानिब से है, हालांकि वो अल्लाह ताला की जानिब से नहीं। और वो अल्लाह ताला पर झूठ कहते हैं हालांकि वो जानते हैं। तो यहाँ ये यहूद का गिरोह था, काब बिन अशरफ वगैरह, जो अल्लाह की आयात को, रसूलुल्लाह की बातों को तोड़ मरोड़ कर बयान करते थे। फिर फरमाए किसी इंसान का ये हक नहीं कि अल्लाह ताला उसे किताब, हिकमत और नबुव्वत दे, फिर वो लोगों से कहे कि अल्लाह ताला को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ, बल्कि रब वाले हो जाओ, इस वजह से जो तुम किताब सिखाते थे और इस वजह से जो तुम पढ़ते थे। और ना ही वो तुम्हें ये हुक्म देगा कि तुम फरिश्तों और नबियों को रब बनाओ। क्या वो तुम्हें कुफ्र का हुक्म देगा इसके बाद कि तुम फर्मा बरदार हो। रुकू नंबर 17 है, और जब अल्लाह ताला ने नबियों से पुख्ता अहद लिया कि यकीनन जो मैं तुम्हें किताब और हिकमत में से अता करूंगा, फिर तुम्हारे पास एक रसूल आ जाए जो तस्दीक करने वाला हो उसके लिए जो तुम्हारे पास है, तो लाजमन उस पर ईमान लाओगे और तुम जरूर उसकी मदद करोगे। अल्लाह ताला ने फरमाया क्या तुम इकरार करते हो और उस पर मेरा अहद कबूल करते हो? उन्होंने कहा हमने इकरार किया। फरमाया फिर गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ। यह आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे और अज़मत शान की दलील है। तमाम अंबिया से अफजल सरदार हैं, आपके बारे में तमाम अंबिया से अहद लिया गया था। फिर इसके बाद जिस शख्स ने मुंह मोड़ा तो वही लोग नाफरमान हैं, अहद शिकनी की सजा के तौर पर जहन्नुम में हमेशा रहेंगे। अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबग़ून, क्या वो अल्लाह ताला के दीन के सिवा किसी और को तलाश करते हैं? हालांकि आसमानों और जमीन की हर चीज खुशी या नाखुशी से उसकी फर्मा बरदारी करती है और उसी की तरफ वो लौटाए जाएंगे। आप कह दो हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए और उस पर भी जो हमारे ऊपर नाजिल किया गया और उस पर भी जो इब्राहिम पर, इस्माइल, इसहाक, याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद पर नाजिल किया गया और उस पर भी जो मूसा को, ईसा को और तमाम अंबिया को उनके रब की तरफ से दिया गया। ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून, हम उनमें से किसी एक के दरमियान भी फर्क नहीं करते और हम उसी की इताअत करने वाले हैं। हम किसी नबी की तकजीब नहीं करते, सब नबियों को सच्चा मानते हैं। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, और जो शख्स इस्लाम के अलावा कोई और दीन तलाश करेगा तो उससे वो हरगिज कबूल न किया जाएगा और आखिरत में खसारा उठाने वालों में से होगा। और अल्लाह ताला उन लोगों को कैसे हिदायत देगा जिन्होंने ईमान लाने के बाद कुफ्र किया, हालांकि उन्होंने गवाही दी कि यकीनन रसूल सच्चा है और उनके पास वाज़ेह दलीलें भी आ चुकी थीं। और अल्लाह ताला जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। ये लोग
یہی سزا ہے ان کی، یقیناً ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح کی تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ جان حلق میں نہ آ جائے۔ یقیناً جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا پھر کفر میں بڑھتے ہی گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ کافر تھے تو ان میں سے کسی ایک سے زمین بھر سونا بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور اگرچہ وہ اس کو فدیے میں دیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جہنم والوں میں سے کم عذاب والوں سے فرمائے گا، اگر دنیا اور جو کچھ اس میں ہے تیرے لیے ہو تو کیا تو اس عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ دے گا؟ وہ کہے گا جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تجھ سے اس سے بھی کم ترین چیز کا مطالبہ اس وقت کیا تھا جب تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا کہ مجھ سے شرک نہ کرنا۔ صحیح مسلم کی 7083 نمبر روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنی کتاب کا سچا علم نصیب کرے، عمل کرنا نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ اس پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔